Now today let's start with chapter number 2, secularism. In this chapter we will study about secularism. देखो जो सेकुलरिज्म है वो आपके थ्री फोल्ड रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है. किसको? मैन, स्टेट और रिलीजन को बताता है, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल टू फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ. वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज दे इंटरनेट. In keeping with the idea of religion freedom, India also adopted strategy of separating power of religion and power of state. Secularism का मतलब क्या होता है? Separation of religion from the state. ठीक है. According to Justice K. Ramaswamy, तो जो के रामास्वामी वो कहते हैं कि जो secularism है is a part of fundamental law and basic structure of Indian political system to secure all its people's socio-economic needs essential for men's excellence with material and moral prosperity and political justice. वो क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. हमारे फंडामेंटल लॉ और हमारे इंडिया का बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है. ये सिक्योर करता है लोगों के सोशो इकोनॉमिक नीड्स, उनके मटेरियल को और उनकी मॉरल प्रॉस्पेरिटी और पॉलिटिकल जस्टिस. इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट. Now the most important aspect of secularism is separation of religion from state power. ये सबसे एक important democratic country है इंडिया. It is important to separate religion from the state in a democratic society. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने freedom of individual को protect करें, ठीक है. Now, thus it's important to separate religion from state. हम बात करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म. देखो हमारी कंट्री इंडिया है, is a secular and has democratic government. Constitution of our country is the largest one of the world. Indian constitution mandate करता है कि India state be secular. According to constitution, only secular state can realize its objective to ensure the following. State does not enforce any particular religion or not to take away religious freedom. आप ना तो किससे कहेंगे कि आप इस religion को follow करो, ना आप किसी का religion किसी से लेंगे. Some members do not dominate other member of same religion कम्युनिटी, ठीक है. कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा और वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट एंड ए रिलीजन दूसरे रिलीजन को भी डोमिनेट नहीं, ठीक है. द इंडियन स्टेट वर्क इन द वेरियस वे जिससे वो अपने डोमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं. पहले अगर हम बात करें, ये उस स्ट्रैटेजी को यूज करता है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन. ना तो डिस्प्ले करेगा ना ही किसी एक रिलीजन को प्रमोट करेगा. Second way, Indian secularism works to prevent above domination through strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religion, not interfere with religious practice. आप किसी भी तरीके की religious practice में interfere नहीं करो. Third way है कि जो Indian secularism है वो work करता है to prevent the domination. जो enlisted है through a strategy intervention और religious based exclusion, discrimination of lower caste और Indian constitution बैन करेगा अनटचेबिलिटी. अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म और अदर डेमोक्रेटिक कंट्री. इन यूएसए द स्टेट एंड रिलीजन बोथ आर सेपरेट. नीदर द स्टेट नॉट द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर. ना तो स्टेट और ना ही रिलीजन किसी इनके बीच में भी इंटरफेयर नहीं करेगा. इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है कि द स्टेट कैन इंटरवीन इन, इंटरफेयर नहीं कर सकता लेकिन इंटरवीन कर सकता है. In Saudi Arabia, non-Muslim are not allowed to build the temple or church, or nor can gather in public places. ना ही वो किसी public places में gather कर सकते हैं. They can build their mosque, temple and church. वो अपना mosque बना सकते हैं, अपना temple बना सकते हैं, church बना सकते हैं. अब हम बात करेंगे fundamental rights in the constitution. The Indian state is secular और वो work करता है various way में जिससे आप अपने religious domination को क्या कर सकते हो, prevent कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है फंडामेंटल राइट जो किस पे बेस्ड है, सेकुलर प्रिंसिपल. और ये आपके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये आपको 7 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं. एंड बट राइट टू प्रॉपर्टी वाज टेकन एज अ फंडामेंटल राइट इन 1978 और कौन से अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट. और इसको किस में रखा गया? लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन और उनको हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा. पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में दिए, ठीक है. ये क्या कहता है? ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ एंड दे विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ लैंड. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. स्टेट क्या है? वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन.
एवरी पर्सन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, चाहे उसमें प्ले ग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. स्टेट इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी. प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड. इफ एनी पर्सन प्रैक्टिस, उसको इम्प्रिजेंट करा जाता है, वो फाइन भी देगा. उसके बाद ओल्ड टाइटल्स को कैंसिल कर रहे हैं, जो महाराजा, अधिराजा इनको और राजा साहेब, बहादुर, और उनको हॉनर करा गया. स्टेट कन्फर्म करेगी हॉनर इन अ फॉर्म ऑफ पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न फॉर वेरियस सर्विस टू द पीपल. उसके बाद राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में आता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है कोर ऑफ सिविल लिबर्टी और सेव करता है इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रेसिव एक्ट. ये हेल्पफुल है, जो फुल्ली डेवलपमेंट है फॉर द पर्सनालिटी ऑफ सिटीजन. ये क्या बताता है? फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट. आपके पास फ्रीडम है कि आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो. ठीक है, आपके पास फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का. आप एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो पीसफुली, लेकिन विदाउट आर्म. प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोफेशन को. आप कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस को प्रोटेक्ट, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो. आपको प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल केसेस. अदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आपका आर्टिकल 23 और 24 में आता है. देयर आर मिलियन ऑफ डिप्राइव्ड. आर्टिकल 23 एंड 24 प्रूव दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स, लेवल, बैनर और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, आप क्या करोगे? इसका वायलेशन होगा. अगर किस तरीके का ऑफेंस होता है उसको पनिशेबल होगा. और चिल्ड्रन जो अंडर द एज ऑफ 14 है उसको कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज या माइनिंग. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Article 25 to 28, Indian Constitution give right to freedom to practice any religion through the right of freedom of religion. Freedom guaranteed under the article are conveyed in most generous terms. Right to freedom of religion raise emphasis on the following. वो किस पे emphasis करते हैं? Every person has freedom to concise and right to profess, practice, propagate. वो अपना religion को propagate कर सकता है, practice भी कर सकते हैं. No one will allow to hurt the religion faith. ठीक है, freedom है कि वो मैनेज करेंगे सारे रिलीजियस अफेयर्स को. पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर, अटेंडेंस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. फिर एक कल्चर और एजुकेशनल राइट, जो आपके आर्टिकल 29 और 13 में आती है. इंडियन सोसाइटी इज द स्टडी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, आपके फॉलोइंग कल्चर और एजुकेशनल राइट है जो इम्फेसिस करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज. नो वन विल बी डिस्गाइज्ड अगेंस्ट द एडमिशन इन स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन, रीजन के या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, राइट आर्टिकल 32. ये क्या कहता है कि आप प्रोटेक्शन मिलती है आपको ऑल ऑफ द राइट एंड ऑनर दैट. और जो सिटीजन है वो अलाउ है कि मूव कर सकता है को अगर उनका कोई भी राइट वायलेट हुआ है स्टेट में या कहीं भी. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड मेनी मोर राइट्स विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट. राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. सर्टेनली ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है. अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट. क्या इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट? ये हमें हेल्प करते हैं इन डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ द पीपल. ये एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी और सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और रिलीजियस और कल्चरल कंडीशन को भी इंप्रूव कर. दे आर इफेक्टिव चेक अगेंस्ट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर. ये प्रोटेक्ट करते हैं डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को. ये इंश्योर करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन पॉलिटिकल प्रोसेस. ये कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है, एडजस्टमेंट करता है बिटवीन इंडिविजुअल एस्पिरेशन और उसको ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. B.R. अम्बेडकर जो है वो फंडामेंटल राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं. और जो एस राधाकृष्णन है वो एक प्लेज टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड. उसके बाद हम करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. दिस आपके मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिजाइन करा है टू इंश्योर ग्रेटर सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म और सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट. कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. मेक अरेंजमेंट फॉर द फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ ऑफ पीपल. प्रमोशन द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स. डेप्लॉय करो विलेज और कॉटन इंडस्ट्री को. प्रोहिबिट करो स्लॉटर ऑफ काउज एंड काउ. ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत और इंट्रोडक्शन करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत. इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन या फिर बैकवर्ड क्लासेस. आप जुडिशरी को सेपरेट करोगे फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड द पब्लिक सर्विस. फोस्टर रिस्पेक्ट करोगे इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को. मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ.
ठीक है, प्रोटेक्शन करोगे इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ, ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी की जो हमें करने चाहिए। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी ड्यूटी है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, चेरिश और नॉर्मल आइडियल्स को आप फॉलो करेगी। प्रोटेक्ट करोगे सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, डिफेंड कॉप ऑफ द कंट्री, प्रमोट करोगे स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, प्रिजर्व करोगे रेड हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, डेवलप करोगे साइंटिफिक टेम्पर, सेफगार्ड करोगे पब्लिक प्रॉपर्टी को, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर, इस इंडिविजुअल हैज ऑल द ड्यूटीज, नो राइट हैज पोजीशन विल नॉट लेस देन द स्लेव। और राइट और ड्यूटी आपकी क्या करती हैं, दे मस्ट बी कोएक्सिस्ट, क्या करनी चाहिए, कोएक्सिस्टेड हो। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।